Hello students, now we are going to study a very important topic, errors. Errors. Before coming to errors, let us understand physics is a practical subject which proves itself on the criterion of experiments, and any experiment, any result can be established if it has less amount of error or it is close to the standard value. So first of all, let us understand what is error. Errors are the difference between the observed, or you can say the calculated values or the measured values in a measurement and the standard value of a given quantity. किसी क्वांटिटी का गिवन वैल्यू और उसके ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, दैट वी कॉल एरर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं इन अ मेजरमेंट? देयर आर मेनी एरर्स, बट सम कॉमन टाइप ऑफ एरर्स आर, फर्स्ट आर कांस्टेंट एरर. Constant errors are those errors which are coming in the experiment or in the measurement every time by a constant value. किसी भी फिक्स वैल्यू से हर बार एरर उतना ही आता है. दिस मे बी बिकॉज ऑफ द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द डिवाइस. सपोज एक डिवाइस को 1 सेंटीमीटर नापना था, बट वो जब बनाया गया गलती से 1 सेंटीमीटर के बजाय उसने 1.1 सेंटीमीटर का मार्क लगा लिया, यानी 1.1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर नापेगा, 1 सेंटीमीटर को कम करके नापेगा. तो एवरी टाइम व्हेन आई एम यूजिंग दैट डिवाइस द एरर कम्स बाय कांस्टेंट मार्जिन. सच एन एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर. नाउ द सिस्टमैटिक एरर, दोज एरर दैट परसिस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. पर्टिकुलर डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन मींस आइदर दे आर कमिंग लेस देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू or they are coming greater than the observed value every time. Means या तो एरर हमेशा पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है. मींस या तो हमेशा वैल्यू बड़ी नापी जाती है या फिर वैल्यू छोटी नापी जाती है. अगर एरर एक ही डायरेक्शन में परसिस्ट कर रहा है, सच एन एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर. थर्ड एरर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कॉमन भी है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं तो इट इज नॉट every time proved that the device is immaculate या error free. When device is made, it may be faulty, it may be wrongly calibrated. So this error which is coming in the measurement because of the design problem or the calibration problem or any cause or on account of apparatus or instrument is called instrumental error. So instrumental errors are those errors which come in a measurement due to the faulty design or faulty make of an instrument is called instrumental error. The common type of instrumental error is zero error. When you will go in the practical lab, it will be explained to you. Next, a type of error is personal error. Personal errors are those errors which comes on the part of user. Suppose I am given an apparatus and I don't know how to use it, or I am given experiment, I don't know which formula I have to use, how to calculate, take the readings of that. So if error comes on account of user, on the part of user, either lack of knowledge about the handling of the instrument or the lack of knowledge about the content of the experiment, such an error are called personal error. Next comes random or gross errors. Error might occur in the observation, in the measurement, but the apparent cause is not known to us. वो किस वजह से आई, क्या उसके पीछे रीजन था, वो हमें पता ही नहीं चलता. तो such type of errors are called gross errors or random errors, or sometimes these are called mistakes. So these are some common type of error. Now we come to the next topic, that is the representation of error. This is important for the exams. Representation of error. Irrespective of the cause of error,
whatsoever be the cause, but errors are expressed in three ways. First type of errors are absolute error, or in short AE. These errors are denoted by a delta sign. जिस क्वांटिटी में भी एरर आएगी, सपोज एरर इज कमिंग इन रेजिस्टेंस, तो एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड डेल्टा आर. डेल्टा मींस एब्सोल्यूट एरर और आर मींस रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस में एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा आर कहूंगा, अगर लेंथ में तो डेल्टा एन. तो जिस क्वांटिटी में एरर आती है उसके साइन के साथ, सिंबल के साथ हम डेल्टा लगा देते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को. नेक्स्ट रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर और थर्ड टाइप के एरर है हमारे परसेंटेज एरर. हाउ कैन वी एक्सप्रेस दीज एरर्स? लेट अस सी. एब्सोल्यूट एरर. Absolute error is the error that is defined as the difference between the standard value and the measured or observed value. Basically जो definition of error हमने दिया था वो absolute error का ही था. तो absolute error is defined as the difference between the standard value and the measured or observed value. यानी AE is equal to standard value difference observed value. Difference indicates that out of the two which value the value is greater will be taken first. So अगर observed value बड़ा है तो observed value minus standard value, और अगर standard value बड़ा है तो standard value minus observed value. Point to note, error cannot be negative. यहाँ error को negative में नहीं लेना है, error को हमेशा positive term बना के रखेंगे. इससे बचने के लिए हम जिसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AE equals to modulus of standard value minus observed value. तो मॉडुलस का मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन इसका आए माइनस प्लस करके, माइनस करने के बाद जो भी साइन आएगा दैट विल बी टेकन पॉजिटिव. तो मॉडुलस इंडिकेट दैट द नेगेटिव साइन इफ अकर्स ड्यू टू दिस सब्सट्रैक्शन विल बी मेड पॉजिटिव. तो यहां पर याद रखेंगे एब्सोल्यूट एरर को हम पॉजिटिव लेंगे और साथ में इसके यूनिट भी लगती है. एब्सोल्यूट एरर के बाद में एक यूनिट भी फॉलो होती है. नाउ द रिलेटिव एरर. Relative error is the error calculated on unit value. Unit value पर अगर हम error को calculate करें तो इसको हम कहते हैं relative error. Relative error is defined as absolute error divided by standard value. Relative error. Relative error is the error calculated per unit standard value of the given quantity. Relative error equal to absolute error divided by standard value. और we can say standard value minus observed value divided by standard value, और ये सारे का हम ले लेंगे मोड. तो दिस इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर में यूनिट ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों तरफ से यूनिट कट जाएगा, यानी ये यूनिट लेस हो जाता है. परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इज द रिलेटिव एरर कैलकुलेटेड ऑन 100. 100 पर अगर मैं रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर लूं तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. Percentage error equal to RE into 100 or equal to standard value minus observed value within mode multiplied by 100 divided by standard value. तो ये है हमारे पास percentage error. Percentage error, relative error और absolute error, इन तीनों error को हमें define करना है how to calculate. But first of all let us take a note. Note says both percentage error and relative error are unitless, but absolute error is followed by a unit. Absolute error में एक यूनिट आएगा, बट परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में यूनिट नहीं आता, ये सिर्फ प्योर नंबर आते हैं. यहां पर मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है. A pan of length 5 cm is measured by a student as 4.5 cm. Find all the three types of error in his observation. तो how to solve? सबसे पहले हमने मान लिया स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ पेन क्या है, यानी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ पेन L equals to 5 सेंटीमीटर. ऑब्जर्व लेंथ, कितना लेंथ ऑब्जर्व किया, इसको मैंने कहा L डैश एंड दैट इज 4.5 सेंटीमीटर. नाउ एब्सोल्यूट एरर. मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा,
और डेल्टा मतलब ये लेंथ में एरर है, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एल माइनस एल डैश का मोड। और एल कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर माइनस 4.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू सेंटीमीटर में। तो आई कैन से डेल्टा एल यानी एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट 0.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आया एब्सोल्यूट एरर इस ऑब्जर्वेशन का। अब हम निकालते हैं इसका परसेंटेज या रिलेटिव एरर। सेकंड में रिलेटिव एरर आर ई इक्वल टू होता है, हमें पता है ए ई अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, और रिलेटिव एरर आर ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल था एब्सोल्यूट एरर और एल था स्टैंडर्ड वैल्यू। आई कैन से 0.5 डिवाइडेड बाई 5 एंड इट हैज बिकम 0.1। तो जो एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर है वो है 0.1। लेट अस सी परसेंटेज एरर। हमें पता है पीई इक्वल टू था आर ई इंटू 100, और यहां पर मैं परसेंटेज एरर क्या आया मेरे पास, आर ई था मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी सीधा सीधा आंसर है 10%। तो इस तरह से ये तीनों एरर मैंने इस ऑब्जर्वेशन में निकाली है। रिलेटिव एरर आया 0.5 सेंटीमीटर, इसमें यूनिट लगेगा। रिलेटिव एरर आया 0.1 और परसेंटेज एरर आया 10%। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एरर्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। स्टूडेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या है ये देखते हैं। अ स्टूडेंट टेक्स रीडिंग फॉर टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम एज 4 सेकेंड, 4.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5.5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट ऑन द 3 टाइप्स ऑफ एरर इन हिज ऑब्जर्वेशन। हमें तीनों तरह की एरर उसके ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेट करनी है। दिस क्वेश्चन हैज अ बिग प्रॉब्लम दैट इट डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड वैल्यू। इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया गया, तो हाउ टू कैलकुलेट? टू कैलकुलेट एरर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट a स्टैंडर्ड वैल्यू बाय टेकिंग मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो लेट अस टेक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5। पहला ऑब्जर्वेशन t1 इक्वल टू 4 सेकेंड है, t2 इक्वल टू 4.5 सेकेंड है, थर्ड ऑब्जर्वेशन t3 इक्वल टू 5 सेकेंड, t4 इक्वल टू 5.5 सेकेंड एंड t5 इक्वल टू 6 सेकेंड। तो दिस वे अब स्टैंडर्ड या मीन वैल्यू क्या होगा, t इक्वल टू इन सबको जोड़ के मैं इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगा और ऑन एडिंग ये सारी वैल्यू रख के जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास है 25/5 एंड आंसर इज 5 सेकेंड। तो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आती है स्टैंडर्ड वैल्यू t इक्वल टू आता है 5 सेकेंड। ये है मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम पीरियड यानी इस का एवरेज या मीन टाइम पीरियड। नाउ एरर इन वेरियस ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर कैसे आई। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा t1 इक्वल टू मोड ऑफ t माइनस t1 और 5-4 का मोड जब मैं निकालता हूं तो 1 सेकेंड आता है। ऑब्जर्वेशन 2 में एब्सोल्यूट एरर यानी एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन डेल्टा t2 t माइनस t2 का मोड और ये आएगा 5-4.5 विद इन मोड। आंसर इज 0.5 क्योंकि यहां पर भी अभी तक मेरे पास 0.5 है। जब मैं एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करता हूं तो t माइनस t3 का मोड और 5-5 यानी 0 आएगा। When I go for the absolute error in fourth observation, so this is the absolute error in fourth observation delta t4, t minus t4 का मोड और यहां पर 5-5.5। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो इसका आंसर -0.5 जनरेट होता है, बट क्योंकि मोड के अंदर इसलिए यहां पर हम +5 लेंगे। सिमिलरली रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मोड ऑफ t माइनस t5 दैट इज इक्वल टू 5-6 विद इन मोड और यहां पर मेरे पास 1 सेकेंड आता है। अब यहां पर ये सब अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के एब्सोल्यूट एरर आए, तो कॉमन एरर कितना होगा दैट वी टेक मीन।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन द होल एक्सपेरिमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा T5, ये सब मैंने यहां तक किया डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5 से। अगर 6 ऑब्जर्वेशन होते तो 6 से डिवाइड हो जाता, 6 टर्म यहां पर ऐड होते। इन सबको अगर मैं यहां पर रख के जोड़ता हूं 1.5 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 0 प्लस 0.5 प्लस 1, तो वैल्यू कम्स 3 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज व्हाट 0.6 सेकंड का एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज 0.6 सेकंड, यानी हर ऑब्जर्वेशन में करीब 0.6 सेकंड की गलती हुई है। रिलेटिव एरर, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर, हमें पता है रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, बट एब्सोल्यूट एरर दिस टाइम वाज 0.6 सेकंड और स्टैंडर्ड वैल्यू वाज 5 सेकंड। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये सारा डिवाइड करके 0.12 परसेंटेज एरर इन द ऑब्जर्वेशन। परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी व्हाट कम्स, दिस वैल्यू कम्स 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट कम्स 12%। 12% का एरर यहां पे आ जाता है। तो दीज आर द एरर्स इन द रिजल्ट और इन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जो एरर आई वो ये 3 थी, एब्सोल्यूट एरर थी 0.6 सेकंड की, रिलेटिव एरर थी 0.12 की और परसेंटेज एरर थी 12% की। बाद की दोनों में हमने कोई यूनिट नहीं लगाया क्योंकि ये रिलेटिव है। ओके, so this is all. I expect you to do more questions in your book and practice it more and more because it is an important topic for exam. This is all about the errors. Thank you and thank you for watching.